अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज आयशा फिरदौस एंड यू आर वाचिंग टीचर्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने पिछले वीडियो रमज़ान एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से सराहा है और कई एक्टिविटीज़ आपने स्कूल में करवाए हैं एंड थैंक यू फॉर दैट लव एंड सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू मेंटेन रमज़ान जर्नल एज वेल। ठीक है, अब का आज का वीडियो मैं बात कर रही हूँ वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड है, जो कि 7 अप्रैल को है। तो आप अपने कैंपस में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करवाइए जिसको हम इससे हेल्थ पे एम्फसाइज कर सके एंड रीइंफोर्स कर सके। एट द सेम टाइम यू कैन सेलिब्रेट इट। ओके, इसके लिए हमको जानना ये ज़रूरी है कि WHO के तरफ से जो है आपका थीम इट इज़ लाइक 75 ईयर्स ऑफ हेल्थ एंड एट द सेम टाइम इट इज़ लाइक हेल्थ फॉर ऑल। तो आपको अपने हेल्थ का पर्सनली हमें अपने हेल्थ के जितना ख्याल रखना चाहिए, वी ऑल्सो हैव टू care for our families, our relatives, our friends, and going to the level of helping the community to stay fit, healthy. And it also talks about holistic health. So health is not only restricted to body or physical fitness, it is about mental health, emotional health, and soul fitness as well. So how will you divide all these things in your school campus, and how are you going to spread this message in your school campus? Again, there's a reminder that whenever you're celebrating a theme, and it doesn't mean that it is restricted for the week. It is like you have to continue that spirit throughout the year, and you have to see that a process initiates based on it. That's the reason you take up world wide भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक दिन इसीलिए मुकर्रर करते हैं कि सबकी सोच एक तरफ आ जाए, इकट्ठे हो जाए, फिर उस सोच को लेकर वो आगे भी चले। ठीक है, so now coming back to our activities. Before I go with the activities, let me remind to the new subscribers that this particular channel is for educators, school leaders, principals, and whoever is associated with teaching. And the whole and sole intention is to serve you in a way that is very simple and easy, and it caters to the real life situations faced in your school. Well, coming back, there are 181 videos till date. आप लोग जा सकते हो, ढूंढ सकते हो हर वो, and there are different playlists like English playlist is there, and you have motivation and several other playlists you can, and B.Ed related playlist also. चलिए, अब हेल्थ डे को जो है आप शुरू करने से पहले यू हैव अ मीटिंग विथ ऑल योर लीडर्स, टीचर्स ग्रुप्स, एंड ट्राई टू डिवाइड द वर्क इन अ वे दैट ऑल द हाउसेस गेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हाउस सिस्टम आपके पास हो तो बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, एंड इन ईच हाउस यू सी दैट यू असाइन 2 health volunteers. Okay, and specifically now divide the activities in a way like first you start with daily assemblies which cover health and fitness. ठीक है, टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, एंड इन पर्टिकुलर इफ इट इज एन इस्लामिक स्कूल देन गो विद रेफरेंसेस विद हेल्थ एंड फिटनेस इन इस्लाम। ठीक है, देन सेकेंडली यू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन ओवर 75 ईयर्स। क्या क्या हुए हैं, लाइक पोलियो इज इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स वॉज इरेडिकेटेड, पेनिसिलिन की डिस्कवरी, ये सारी चीज़ों के बारे में एक रिसर्च बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन हो टीचर्स का। जैसे मैंने इससे पहले कहा थिंक टैंक होना चाहिए, तो उस तरीके से रिसर्च बेस्ड वर्क हो, एंड देन ऑल ऑफ देम सिट टुगेदर एंड कम अप विथ दिस contributions, and they talk about it in the assembly or show them a video in the assembly. Then third one, you talk about mental health, spreading happiness in the family, smile is the charity, and giving them some activities which will try to they get bonded with their parents, gelled with their family members, do something of that sort. And soul fitness ke liye you can remind how to connect to the Almighty with the several zikr and askar. And one aspect is you're already in Ramzan, so all this will definitely be ibadat. Now coming to it, when you do these things, daily assemblies and all, then what are the activities? Okay, let the Diniyat staff and the social studies staff, Diniyat staff and the science staff merge in such a way that they actually see that different activities take place in your school. तो आप तिब्बे नबवी का इलाज
ये एक स्टॉल लगवा सकते हो जहां पे बच्चे टाइम टू टाइम आके देखेंगे, या किसी एक दिन मुकर्रर करके एग्जीबिशन रख सकते हो। व्हाट इज तिब्बे नबवी? तिब्बे नबवी इज द प्रॉफिटिक मेडिसिन। ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ शिफा के बारे में बात की और कुछ नुस्खों के बारे में बात की जो इजीली अवेलेबल घर में अपने पास कुछ चीजें हैं। जैसे सिंपल से मैं बताती हूँ, जैसे खजूर को पानी में भिगाकर पीना, इट हैज वाइड रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स विच लेटर ऑन इज प्रूव्ड इन मेनी अदर मेडिसिन। सो अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मेनी थिंग्स जो तिब्बे नबवी में कवर्ड है। तो रिसर्च ऑन दिस एंड अ प्रेजेंटेशन इन अ स्टॉल, एंड इफ यू कैन प्रैक्टिकली ब्रिंग सम ऑफ द थिंग्स एंड establish that particular setup, it is good because it talks about health. Okay, secondly you can cleanliness of the campus. Cleanliness of the campus में आप एक स्लोगन से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, कंपटीशन की तरह रख सकते हो कि डिफरेंट हेल्थ वाइज अवेयरनेस हम स्प्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ इस्लामिक कोड्स भी हो, जैसे पाकी आदा ईमान है, उसके साथ साथ कई अदर कोड्स है लाइक यू नो स्टे हेल्दी, गो ग्रीन, वॉट एवर ऑल द हेल्थ रिलेटेड slogans you can take it up as a competition or so give them so that they can display in the school campus. और एक क्या है, contributions. सारे स्कूल के बच्चे अगर जमा करते हैं कुछ अपने हिसाब से जितना भी रकम हो सके, if they contribute fund together for such a collection that helps in the maintenance of the school campus which is clean. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चों को अपने स्कूल के लिए एक बिलोंगिंगनेस महसूस होगी। यू कैन टेल देम टू लाइक यू नो चेक वेदर देर आर टिश्यू बॉक्सेस एंड हैंड वॉश एंड ऑल सच थिंग्स इन द कैंपस, सो दैट कलेक्टेड फंड इज यूज्ड इन दिस। ग्लव्स हैं या कैंटीन एरिया में उन लोगों को ग्लव्स प्रोवाइड करना, क्लेनलीनेस, सैनिटाइजर्स, ये सारी चीजों के लिए स्कूल कैंपस में सेटअप करना, और जो हेल्थ के वॉलंटियर्स है इसको टाइम टू टाइम देखेंगे। यू सी हाउ द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये एक है। एंड देन इनवाइटिंग एनी पेरेंट टू स्पीक इन द असेंबली। अगर पेरेंट डॉक्टर्स हो या फिर डाइटिशियंस हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, उनको बुलाइए और असेंबली में बात करवाइए। एडिंग टू ऑल दिस यू कैन हैव अ हेल्थ चेकअप इन योर कैंपस। हेल्थ चेकअप करवाइए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्कूल पेरेंट्स के लिए हेल्थ चेकअप आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके कम्युनिटी में सबसे करीब जो क्लिनिक्स हैं उनसे आप कोलैबोरेट कर से। दिस इज हाउ अ स्कूल एक्सपैंड्स टू द एरिया ऑफ अ कम्युनिटी। यू आर कॉलिंग इन देम, रोपिंग इन देम, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, एट द सेम टाइम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड देन विच हेल्प्स अस बिल्ड द इकोसिस्टम बियॉन्ड आवर स्कूल एज वेल। तो कमिंग टू दैट, वैसे बुला लीजिए, और कुछ यू नो अपने हाउस कीपिंग, अपने मेंटेनेंस के जो है उन लोगों के लिए भी हेल्थ कार्ड्स बनवाइए, बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड्स बनवाइए। ऐसे कई चीजें हैं जो आप शुरू कर सकते हैं, marking it as a significance of celebrating World Health Day, at the same time continuing the process throughout. So with all these things you can have आप पूछेंगे आयशा मैम छोटे बच्चों को क्या करेंगे, उनके लिए कभी एक हेल्दी सलाद डे, सैलेड बना के या फ्रूट्स वेजिटेबल्स मंगा के बच्चों के साथ ही उनको इम्पोर्टेंस ये बता के आप जो है एक दिन ये सैलेड एक्टिविटी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों को जो है जंक फूड नहीं होना है, जंक फूड नहीं, अच्छा नहीं है, उसके नुकसान क्या है, ये बच्चे खुद प्लान कर सकते हैं, असेंबली में ये चीज़ों को ला सकते हैं। ओके, दे कैन हैव रोल प्लेस किट्स, and if you can go to the level of organizing a 2 to 3 hour program, a special program on 7th April or the next day Saturday, then organize all these things like with simple clippings and all. Ab Ramzan, how Ramzan is healthy, how it adds to the health, okay, linking it to intermittent fasting, jo ab everywhere the whole world is going gaga about intermittent fasting, and Ramzan रोजे के बारे में उसके हेल्थ के बेनिफिट्स इतने साल पहले सब बता दिए गए हैं। सो यू कैन सी यू कैन टेक द इवेंट एंड bring life into it by adding on everything and taking up adding on the benefits of Ramzan and wazu, namaz, everything, linking it to the health. And then if you know बच्चे नहीं आ रहे हैं and like you know there is no activity going on in school, then there is a way you can continuously send messages, health related messages on the WhatsApp group, and involve the students of different classes on online programs and tell them to share blogs about it, and then you know some articles about it, and whatever they can do online, let them record the videos and send, and this can be done on an online platform. And high school के बच्चों को खासकर आप एक हेल्थ सर्वे की भी एक्टिविटी दे सकते हैं,
लाइक वो लोगों को कुछ सवाल दे दीजिए अपने नियरेस्ट फैमिली और नेबरहुड में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको लिस्ट करेंगे, उससे कुछ अंदाजा लगाएंगे एंड यू कैन ब्रिंग अ रिसर्च माइंडसेट इनटू देम. सो ऑल दीज थिंग्स you can do when they are offline or online. It is up to you when you have to create the awareness on health.